ایران کے شہر میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی جاؤ ساتھ والے گھر سے ماچس لے کر آؤ۔ لڑکی جب ماچس لینے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت گوشت بون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل بھی گوشت کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی دروازے کے باہر کھڑی رہی اور دیکھتی رہی کہ شاید وہ عورت اسے گوشت کھانے کو دے دے، مگر پھر بھی اس نے ایسا نہ کیا۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر آ گئی۔ باپ پریشان تھا کہ بیٹی نے اتنا ٹائم کیوں لگایا ہے۔ لڑکی نے باپ سے کہا، بابا جان ہمسائی گوشت بنا رہی تھی تو میرا بھی دل چاہا کہ میں گوشت کھاؤں، تو میں وہاں کھڑی رہی کہ شاید ہمسائی مجھے گوشت دے دے کھانے کو، لیکن اس نے نہ دیا، تو پھر میں مایوس ہو کر گھر آ گئی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل گوشت ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ایک ماچس ہی خریدی جا سکے، تو میں گوشت کہاں سے لاؤں گا؟ لڑکی نے کہا، بابا جان کل ضرور لائیں۔ لکڑہارے نے کہا، اچھا بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو گوشت لا دوں گا۔ لڑکی نے بات مان لی۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرنے لگا اور جمع کر کے گھر آ گیا۔ دوسرے دن جب وہ جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے بے ہوش ہو کر گر گیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور زمین سے چند پتھر اٹھا کر اسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لو، جب تم اٹھو گے تو تم اللہ کی راہ میں کسی غریب انسان کی مدد کر دینا جسے اس کی ضرورت ہو۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ جو پتھر بزرگ نے اسے دیے تھے وہ اسی کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا اور شرمندہ ہو کر کھڑا رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں۔ باپ نے کہا، بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور گوشت لے کر آؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں۔ بیٹی نے کہا، بابا جان آپ اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ میں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہی پتھر کے ٹکڑے نکال کر بیٹی کو دیے۔ کہا کہ یہ لو بیٹی، ان سے کھیل لو۔ لڑکی نے پتھر کے ٹکڑے اٹھائے، کمرے میں پھینک دیے۔ صبح صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی ڈر کر باہر آ گئی اور لکڑہارے سے کہا کہ ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارا فوری بھاگا اور اس نے دیکھا کہ کمرے میں تو ہر طرف موتی اور ہیرے چمک رہے ہیں۔ اس نے ایک ہیرا لیا اور جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو، اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا، گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے دولت اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارا حیران ہوا۔ اس نے جس قدر بوریاں اٹھائی گئیں وہ لے گیا اور انہی پیسوں سے زمین خریدی جہاں اسے بزرگ بابا جی ملے تھے جنہوں نے اسے وہ پتھر دیے تھے۔ وہاں اس نے ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا، اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے پاس اللہ کی دی ہوئی ہر چیز ہے، میرے بعد تم غریب اور یتیم بچوں کی مدد کرتی رہنا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارا جب چلا گیا تو لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ بیٹی جاؤ، تمہارا باپ مجھے ذمہ داری دے کر گیا تھا، ہمارے گھر کے پاس ہی ایک غریب کا گھر ہے، اس کے گھر جا کر کچھ کھانے کے لیے پیسے دے آؤ یا کچھ کھانا دے آؤ۔ تو لڑکی نے کہا، ماں
अब हम अमीर हो गए हैं, ऐसे गरीबों के घर जाते हुए अच्छा नहीं लगता। लड़की ने साफ मना कर दिया। माँ खामोश हो गई। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि यकायक ऐलान हुआ कि हमाम को खाली कर दो, क्योंकि वहाँ मलका और उसकी बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही हैं। चुनांचे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी तशरीफ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि ये हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की बेटी ने कहा, आओ हम तुम सहेलियां बन जाएं, ये हार तुम ले लो। मेरे पास ऐसे बहुत से हार मौजूद हैं, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, आज से हम दोस्त हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आना। एक दिन लकड़हारे की बेटी शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी आराम फरमा रही थी। शहजादी जब कमरे से बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर देखा तो हार गायब था। शहजादी को बहुत गुस्सा आया। इसने लकड़हारे की बेटी और बीवी से पूछगिछ की और उन्हें कहा कि कहीं ये हार तुमने तो नहीं चुराया। तो लकड़हारे की बीवी और बेटी ने कहा कि जब हम गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन शहजादी और बादशाह को यकीन न आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो। इनके घर के बाहर एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया तो रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ हैं और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बहुत परेशान हुआ और बादशाह के पास आया तो सारा माजरा बादशाह से कहा। तो वहाँ उसने बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह भी ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद में डाल दें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बेटी और बीवी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चुनांचे लकड़हारे को भी कैद में डाल दिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा, मेरे जाने के बाद आप लोगों ने अल्लाह की राह में कुछ तकसीम किया, गरीबों की मदद की? जो काम मैंने आपसे कहा था वो आपने किया? तो उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, ये तुम लोगों को इसी गरूर और तकब्बर की सजा मिली है जो तुम अल्लाह को भूल गए और गरीबों की मदद करना छोड़ दी। गर्जी के तमाम रात वो लोग तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो ख्वाब में देखा कि वही बुजुर्ग आए हैं और उन्होंने कहा कि तुम लोग अल्लाह के रास्ते में खैरात करना भूल गए थे और तुम लोगों के दिल में तकब्बर आ गया। अब तुम ऐसा करो, सुबह उठते ही तुम गरीबों की मदद करो ताकि जो लोग भूखे हैं उन्हें खाना मिल सके और तुम लोगों से ये अजाब टल जाए। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास तो पैसे मौजूद नहीं हैं। तो बुजुर्ग ने कहा कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे तुम्हें कुछ पैसे मिलेंगे, इन पैसों से किसी गरीब की मदद करना। जब लकड़हारा सुबह उठा तो देखा कि बिस्तर पर इसके सहाने के नीचे एक 5 रुपए का नोट था। कैद खाने के बाहर दरवाजे पर खड़ा हो गया। वहाँ से एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा और इसे कहा कि लड़के, ये 5 रुपए ले लो और मेरे हमसाये के घर में जाकर दे आओ, उन्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। लड़के ने मना कर दिया। लड़के ने कहा कि मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा।
ये कहकर लड़का भी चंद ही कदम आगे चला था कि घोड़े से गिरकर जख्मी हो गया। यूं ही जब इस लड़के का बाप रोता हुआ उसके पीछे आया और अपने बेटे को देखकर बहुत परेशान हुआ। लकड़हारे ने लड़के के बाप से भी वही सवाल किया कि ये लो पैसे ले लो और एक गरीब की मदद कर दो, वो बहुत ही मजबूर है, इनके घर में पैसे दे आओ ताकि वो लोग कुछ खाना बना ले। लड़के के बाप ने सोचा, मेरा बेटा तो जख्मी हो गया है, तो क्यों ना मैं अब इस कैदी की बात मान लूं और उसकी मदद कर दूं। इस तरह अल्लाह मेरे लिए भी आसानियां पैदा करेगा। चुनाचा उसने लकड़हारे का काम किया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तो आदमी ने बताया, मेरा बेटा मेहंदी लेने के लिए गया था और गिर गया, वो जख्मी हो गया है। तो लकड़हारे ने इसके लिए दुआ की और कहा कि जाओ तुम देखो तुम्हारा बेटा ठीक है। वो आदमी गया, उसने देखा कि इसका बेटा बिल्कुल ठीक था और अल्लाह का नाम लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। इधर जब बादशाह अपने महल में खाने के लिए बैठा तो उसने देखा कि खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए हुए आ रही है। चिड़िया ने इस हार को खूंटी पर लटका दिया। बादशाह ये देखकर हैरान हुआ और सारा किस्सा समझ गया और कहने लगा कि इसमें कोई राज पोशीदा है। इस वक्त लकड़हारे को बुलाया गया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह को सुनाया। बादशाह सारा वाकया सुनकर बहुत खुश हुआ। यही से लकड़हारा संभल गया। उसने अल्लाह के हजूर सच्चे दिल से तौबा की। वो जान चुका था कि दौलत अगर गुरूर और खुदगर्जी का सबब बने तो रहमत की बजाय जहमत बन जाती है। इसने फिर से सदका खैरात शुरू की और हर गरीब, मुसाफिर और यतीम की मदद करने लगा। वो महल जो कभी खामोश और सुनसान था दोबारा मोहब्बत, कनात और खैर खाही का गहवारा बन गया। अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल फरमाई और दोबारा इसके रिज़्क में बरकत डाल दी। लेकिन अब वो दौलत इसके दिल में नहीं, हाथ में थी। वो हर रोज सजदे में गिरता और शुक्र अदा करता। इसकी ज़बान से हमेशा ये अल्फाज निकलते, या अल्लाह मुझे वही रख जो मेरे लिए बेहतर हो और मुझे वही दे जो मेरे दिल को आजिज़ी सिखाए। यूं एक लकड़हारा जो माजी में गुरूर का शिकार हो चुका था, अब एक दरवेश दिल इंसान बन चुका था और इसकी जिंदगी आने वालों के लिए एक रोशन सबक बन गई। अल्लाह की नेमतें तब ही कायम रहती हैं जब इंसान आजिज़, शुक्रगुजार और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वाला हो।